Welcome to Masterclass with Mohsin Khawer, your ultimate guide to art and craft of photography. I'm Waqas Nasir, your host, and in this series, we explore the depths of photography with the acclaimed photographer Mohsin Khawer. From technical expertise to the soulful aspects of visual storytelling, each episode is a goldmine of insights. Whether you are a seasoned pro or just starting, join us as we unravel the secrets behind capturing moments that truly speak. I'm excited to embark on this enlightening journey with you. Let's dive into the first episode of Masterclass with Mohsin Khawer. Hello Mohsin, how are you? I'm good, how are you? I'm good as well. Now that we are embarking on this journey, so for the first episode, I would like to ask you, how do you define photography? Photography is basically, I hope you know it because since you're also a bit of photography enthusiast, photography comes from a Greek word which photo means light and graphy means to capture. So that's how it started. So for me and any passionate photographer, light is actually very important. जितनी lighting strong होगी, जितना light पे command अच्छा होगा, उतनी photography अच्छी होगी. So photography for me is about seeing things the way you perceive. हर इंसान का एक तस्वीर किसी चीज़ को देखने का एक ज़ाविया होता है. उसमें वो जिस एंगल से चीज़ों को देखता है, लोगों को देखता है, लैंडस्केप्स को देखता है और फिर उस पर लाइट किस तरह से वो कैप्चर करता है, उसकी कॉम्पोजिशंस क्या होती हैं, वो सारा एक कंप्लीट फोटोग्राफ बनाती है. So people pursue photography as profession, and then there are people who pursue photography as passion. So I would actually like to know how these two things are different and how do you perceive both of these things? देखिए, profession is something you have to do to earn your bread and butter. But passion is something, you know, which comes straight from the heart. There are different types of photographer. For instance, I started off as a very passionate photographer. I am still very passionate about it. But then it became my profession, and you know, full-fledged profession leads to different eras and different segments of photography which you incorporate. Passion के अंदर आप वही करते हैं जो आपका दिल करता है और आप दिन रात उसमें मेहनत करते हैं, उसमें आप इनोवेशन लेकर आते हैं, इम्प्रोवाइज़ करते हैं चीज़ों को. लेकिन जब आपका फुल फ्लेज प्रोफेशन बन जाता है फिर उसमें आपको वो भी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपका दिल नहीं करता. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ समवन doesn't like product photography but it's his profession and he wants business out of it, तो वो product photography पे भी focus करेगा. Someone doesn't like let's say fashion or wedding, लेकिन professionally he has to cater the clients, तो वो professionally photography होती है. Passion is something which is straight from the heart, which you do anyway. वो आपको पैसे मिलें उसके या ना मिलें, आप उस पर focus करते हैं. और अगर दोनों चीज़ों का mix हो जाए तो that is always amazing. Well, that's good. If someone is starting photography as a profession, so what are those aspects that one should keep in mind? Because यहाँ पे, as you said, like once you enter that profession वाली field, so it's about earning. So what are the aspects that people have to keep in mind, especially while they are working in Pakistan? देखिए, अगर प्रोफेशनली आप एंटर हो रहे हैं इस फील्ड के अंदर तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप सारी आप मार्केट को अच्छी तरह स्टडी कर लें. आप पहले देखें कि किस तरह का मार्केट ट्रेंड चल रहा है, आपकी जो क्लाइंट बेस है वो उन दिनों क्या डिमांड कर रही है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. अगर आप अपने आप को सेगमेंट कर लें स्पेसिफिक जॉनर ऑफ फोटोग्राफी पे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी. And you know, you'll specialize in that particular type of photography. That will actually help you ace better. For example, if someone is very interested in portraits and weddings, तो वो उस पर अपना 100% फोकस डालें तो उसमें एक नाम बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स में थोड़ा सा आपका जो पैशन है या आपका फोकस है वो डाइवर्ट होता है. लेकिन अगर हम एक चीज़ पे फोकस करें तो उसके ऊपर आपके कमांड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है.
तो आप अगर अपना सबसे पहले आप देखें कि आपका दिल क्या कर रहा है करने का, फोटोग्राफी की किस फील्ड में। उसके साथ जो आपका पैशन है उसको हमेशा स्टिक करना चाहिए पैशन पे, और उसके ऊपर आपको मेहनत करनी चाहिए। लेकिन प्रोफेशनली ऑब्वियसली यू डोंट वांट द क्लाइंट टू गो अवे। आप थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, और अपनी उस फील्ड के अंदर आप अपने कंपेटिटर्स को देखें, आप अपने सीनियर्स को देखें, उनसे आप इंस्पिरेशन लें, उनके काम को स्टडी करें। अगर आप किसी से मिल सकें तो उनसे ज़रूर मिलें, उनसे पूछें कि हाउ इट वर्क्स, किस तरह। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ सीनियर्स इन आवर इंडस्ट्री जो कि नए यंग अपकमिंग फोटोग्राफर्स को गाइड करना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहेंगे। और स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो अभी अपने उन्होंने फुल फ्लेज काम में नहीं आए, तो उनके लिए एडवाइजेबल ये है कि वो एक दफ़ा किसी अच्छे फ़ोटोग्राफी कंपनी में या किसी प्रोडक्शन हाउस में एक इंटर्नशिप करें, ताकि वो थोड़ा सा सीखें प्रैक्टिकल वर्क कैसे होता है, हाउ टू डील विद क्लाइंट्स, हाउ टू डील विद सेलिब्रिटीज़, हाउ टू डील विद मॉडल्स, हाउ टू डील विद एक्चुअल पीपल यू वर्किंग विद। तो वो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। उसके साथ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, साथ आपने देखना है कि आपका कैमरा आपको कौन सा रिक्वायर्ड है। आजकल बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलें, जिस तरह एडवांसमेंट हो गई है अब कैमरास में भी, वो साथ चलें। लेकिन अगर फिर भी आप थोड़ा सा अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ लोअर एंड मशीन। आप उससे पहले अपने हाथ सीधा कर सकते हैं। इवन यू कैन स्टार्ट विद योर सेल फोन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप उस तरीके से उस पर मेहनत करें, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, उससे आपका स्किल भी इन्हांस होगा, उससे आप अच्छी तरह पॉलिश भी होंगे, और आप ज़्यादा आपका एक सॉलिड बेस बनेगी और अच्छा काम निकलेगा। Good. So with the new technology coming up, how important it is to learn that new technology and how difficult it can be? I don't think इतना मुश्किल होता है. It won't be very difficult because when you have an interest in something, तो आप कोशिश करते हैं. Plus new technology is very friendly. But I think if you want to get into anything, if you want to use a DSLR, if you want to use a phone camera for instance, or if you want to in a professional mode, phone camera in a professional mode, or if you want to use gadgets like a gimbal or use the basic production lights. There's 1,000 types of lights now. Yes. So you should have basic understanding, basic knowledge or basic training. That will be very helpful. Otherwise, you'll just keep on, wasting your money. तो थोड़ा सा अगर आप बेसिक लेवल की ट्रेनिंग ले लें या सीख लें, ऑनलाइन देख लें, किसी से क्लासेस ले लें या कहीं किसी के साथ इंटर्नशिप कर लें, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है. That's great. So Mohsin, what is the scope of photography and videography? फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी तो बहुत इसेंशियल पार्ट्स है किसी भी मार्केटिंग कैंपेन के. और आजकल यू मस्ट बी फेमिलियर कि हर चीज़, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे फूड हो, चाहे फैशन हो, रिटेल हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको उसकी फोटोग्राफी एंड वीडियोज़ एंड रील्स अच्छी बनाएं. उसके लिए अगर आपके पास ये स्किल है तो यू कैन वर्क इन एनी इंडस्ट्री बिकॉज एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर समवन हु कैन हैंडल द सोशल मीडिया, हु कैन मेक कंटेंट फॉर देम. तो इसका तो स्कोप वर्ल्ड वाइड है और दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा. स्पेशली जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐड होंगे, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी का स्कोप और बढ़ता जाएगा. तो सोशल मीडिया ने इसको और इन्हांस कर दिया. So I see a very bright future, especially for videography. So basically, you're trying to say it is beyond just like fashion shoots and product shoots. Of course. Fashion shoots are fashion is one little aspect of photography and videography.
अदरवाइज अगर आप दुनिया में एक्सप्लोर करें तो रियल एस्टेट फोटोग्राफी होती है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है, फूड फोटोग्राफी, यू नो, पीपल लव फूड, उसकी जो रील्स बन रही हैं, जिस तरह रेस्टोरेंट्स आप पाकिस्तान में देखें, या हाउ एंटाइसिंग द कि हाँ फूड जी इज। कितने रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, कैफ़ेज़ आ गए हैं, everyone wants a dedicated person to do their social media, उनके लिए कंटेंट क्रिएट करे। अब तो जॉब्स जो है वो इस कैटेगराइज होती हैं, कंटेंट क्रिएटर की जॉब्स निकल रही हैं। तो कंटेंट क्रिएटर क्या है बेसिकली? कंटेंट क्रिएटर एक फ़ोटोग्राफ़र और एक वीडियोग्राफ़र है जो कि सोशल मीडिया थोड़ा सा हैंडल कर सकता है। तो ये तो बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि एक इंसान इंजॉय करने के लिए करता है। अगर इसमें थोड़े से भी एस्थेटिक्स होते हैं या वो आर्ट्स की फील्ड से है तो वो उसको इंजॉय करने के लिए करेगा। एंड इससे बेहतर क्या है कि आप एक चीज़, एक हुनर को सीखें, एक स्किल को सीखें और वो उसको आप इंजॉय भी करें और उससे आपको पैसे भी मिलें। And I think it's beyond that, like not just from the art field, क्योंकि anyone who wants to learn this skill, they can be a part of it. क्योंकि एक स्किल है, चाहे वो साइंस की फील्ड से हो, चाहे वो बिजनेस की फील्ड से हो, आई थिंक इट इज़ बियॉन्ड दैट। लाइक आर्ट के अलावा भी एनीवन कैन लर्न दैट। ऑफ कोर्स फोटोग्राफी तो एक ऐसी चीज़ है कि आप मतलब आपका एक जाविया है, आपका एक परसेप्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जिस तरीके से दुनिया को देख रहा हूँ या मैं कुदरत को देख रहा हूँ, नेचर को देख रहा हूँ और वो मैं कैप्चर करूँ और लोगों से शेयर करूँ, तो उसके लिए आपकी जो आँख है वो बेसिकली एक फ्रेम है। और अगर आप उसको कैप्चर कर लेंगे, उस कॉम्पोजिशन को कैप्चर कर लेंगे वीडियो में या फोटोग्राफी में, तो यू कैन शेयर योर perception with the world, and it's always interesting, sometimes people want to see what you see. Exactly. So, Mohsin, how do you think the landscape of photography has changed generally? I mean, initially there were analogous cameras and now we have digital cameras. And what is the difference between these two, and how important is it to learn these new skills and to get familiar with the equipments and gadgets we are coming up with? I think photography is becoming easier and easier day by day. In the end, आपके aesthetics है, how you place things, how you put things together. For example, if you want to photograph a cup of tea or make a video of a cup of tea, तो आप ये आपके aesthetics है। आप खाली एक चाय के कप की भी तस्वीर खींच सकते हैं, आप उसके साथ थोड़े से कुकीज़ रख के, अच्छा सा नैपकिन रख के भी कर सकते हैं। तो ये आपके aesthetics है। अदरवाइज़ टेक्नोलॉजी ने तो इतना एडवांस कर लिया अपने आप को कि आपको लाइट बैलेंसिंग हर चीज़ उसके अंदर पहले से आ रही है। फिर एआई का रोल है। अब जितने लेटेस्ट कैमरास आ रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि लाइट को बैलेंस कर देता है, जो कि आपके कलर्स को बैलेंस कर देता है, फोकसिंग के इश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। तो ये जो इवॉल्वमेंट है बेसिकली, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। और इस आई थिंक मेरा ज़ाती मानना ये है कि जो भी एक फ़ोटोग्राफ़र या वीडियोग्राफ़र हो या किसी भी फील्ड में वो आर्टिस्ट हो, उसे इनोवेट करना चाहिए, उसे नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई रील पे करता था तो वो ज़्यादा अच्छा फ़ोटोग्राफ़र है। ऐसा नहीं है। लोग फ़ोन्स के ऊपर लेंसेज लगा के म्यूज़िक वीडियोस बना रहे हैं, तो आप यूज़ करें। ये तो आपका तरीका है ना, आप किस तरीके से गैजेट को यूज़ कर रहे हैं। तो मेक थिंग्स कंफर्टेबल फॉर योर सेल्फ, बट एस्थेटिकली यू शुड बी गुड। और आई थिंक अगर आपके एस्थेटिक्स लाइट को यूज़ करने में अच्छे हैं तो फिर आप किसी भी गैजेट से काम कर सकते हैं। That's good. Mohsin, what can viewers expect from this masterclass? This masterclass is basically for the beginners, for all the aspiring photographers, for students, for elderly people जो कि अब चाहते हैं कि वो दुनिया में ट्रैवल करें और कुछ तस्वीरें खींचें। ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हम प्रोफेशन अपनाएं फ़ोटोग्राफी का, एंड वी शुड स्टार्ट अर्निंग आउट ऑफ इट। कुछ स्टूडेंट्स जिनके कुछ सवाल हों, they can always write in the comments and we can take up those questions as well and answer their queries. We can try to be like a proper guide for them. इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे, कैमरा के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, फिर बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, अपर्चर, शटर, ISO, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे।
उसके अलावा हम डिफरेंट जॉनराज ऑफ फोटोग्राफी को डिस्कस करेंगे, उनका पाकिस्तान की मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्कोप है उसको डिस्कस करेंगे। फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करेंगे, साथ हम प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे लोग अपनी फ़ोटोग्राफी को ऑनलाइन बेच सकते हैं, अपना काम एग्जिबिट कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट एंगल्स हम अपनी इस मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस किया करेंगे, डिफरेंट एपिसोड वाइज, एंड आई एम श्योर वो हेल्पफुल होगा। अगर उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई एक्स्ट्रा चीज़ पूछनी है या कोई कन्फ्यूजन है या किसी चीज़ में वो चाहते हैं कि वो हमें गाइड करें, बिकॉज़ हम सब सीख ही रहे हैं, तो वो कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं और हम उस पर एक प्रॉपर शो भी कर सकते हैं क्वेश्चंस। That's great, Masin. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand.